वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी अज 9 जनवरी का दिन है जी, शनिवार का दिन है। तो पलवल बॉर्डर के उपर खड़े हाँ, किसान आगू ने जिहड़े जां होर बुलारे आ, वो अपनी भाषण दे रहे, गलबात कर रहे आ। सो ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ कि ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਨੀ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਉਨੇ ਹੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ 55-60 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਫੋਟੋ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਵਿਚਰੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਚਿਨੌਰ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚਿਨੌਰ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਸਾਂਸਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਰਸੋਂਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਡਬਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਯੋਗਦਾਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਜੱਥਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਡਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਰੜੇ 'ਚ ਸੌਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ, ਥੋੜੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਥਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਰਿੰਦਰ ਸੋਢੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ MP ਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਮੰਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸੰਸਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੋਲਤਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਘਾਟ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵੀ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਸਤੇ। ਏਡਾ ਮੁੱਢ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਆਪਾਂ ਸੱਚੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀਰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਜਾਂ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣਾ ਵਾਕਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मोदी की तारीख देते हुए नहीं सकते हैं, तो आगे हमें क्या करना है? हमने 2 लाइन लिखी है, टाइम थोड़ा है। मजदूर किसानों इकट्ठे हो जाओ, जाना है दिल्ली। मजदूर किसानों इकट्ठे हो जाओ, जाना है दिल्ली।
ठहराना है दिल्ली, मजदूर किसान इकट्ठे हो जाओ, जाना है दिल्ली। रंगों की सरकार बनी है ना है आटे में, रंगों की सरकार बनी है ना है आटे में, लाकर काले पीले किए छपड़े छापे में। अभी इनको जाकर अच्छा सबक सिखाना है दिल्ली, मजदूर किसान इकट्ठे हो जाओ, जाना है दिल्ली। बेदर्दी सरकार न समझे दर्द किसानों का, बेदर्दी सरकार न समझे दर्द किसानों का, फर्क नहीं पड़ता इस पे हमारे उल्हानों का। इनकी भाषा में इनको अब समझाना है दिल्ली, वो मजदूर किसानों इकट्ठे हो जाओ, जाना है दिल्ली। सड़कों पर धक्के खा रहा दीन किसान है, सड़कों पर धक्के खा रहा दीन किसान है। आतंकवादी बतला रहा हमें वो प्रधान है, आतंकवादी बतला रहा हमें वो प्रधान है। कभी नकली कहे किसान हमें बतलाना है दिल्ली, मजदूर किसान इकट्ठे हो जाओ, जाना है दिल्ली। गणतंत्र दिवस का झंडा हमें फहराना है दिल्ली। आंदोलन की कुर्बानी वृथा ना जाएगी, आंदोलन की कुर्बानी वृथा ना जाएगी। या तो बिल वापस ले ले दिल्ली पछताएगी, या तो बिल वापस ले ले दिल्ली पछताएगी। और मुरग पार कह देवी सिंह हमें गाना है दिल्ली, मजदूर किसानों इकट्ठे हो जाओ, जाना है दिल्ली। गणतंत्र दिवस का झंडा हमें फहराना है दिल्ली, गणतंत्र दिवस का झंडा हमें फहराना है दिल्ली। हो पीएम मोदी तू कान खोल कर सुन ले, अपने गिरद में धर ले, मत हार जाए तू किसान से, मिट जाएगा तू सारे हिंदुस्तान से। ओ पीएम मोदी तू कान खोल कर सुन ले, अपने गिरद में धर ले, मत हार जाए तू किसान से, मिट जाएगा तू सारे हिंदुस्तान से। जब आपको हमने पीएम बनाया था तो हमने आपकी बड़ी सेवा करी थी, आपको वोट दी थी, और क्या हुआ, हमने क्या बोला था, क्या जनता कहती थी, जब सुनिए। और ये हरी हरी मोदी, हरी हरी मोदी, जनता ने नारा दिया, हरी हरी मोदी, हरी हरी मोदी, जनता ने नारा दिया, अड़ा धुंधी तेरी वोट है डाली, ताज तेरे सर धर दिया। हमने तुमको कमल दिया था, जनता से तुमने वादा किया था, 2 करोड़ में नौकरी दूंगा, काले धन से घर भर दूंगा, कोई वादा न पूरा किया।
दिया, किसी कानून की धज्जा कर दिया। कह दो तुम ईमान से, मिट जाएगा तू सारे हिंदुस्तान से। और कहे वीर सिंह घोड़ी वाला, कहे वीर सिंह घोड़ी वाला, किसान क्रांति आएगी, प्रधानमंत्री किसान होगा, तब खेती लहराएगी। 24 घंटे बिजली होगी, फसल हमारी दुगनी होगी, आमदनी भी चौगुनी होगी। रिपोर्ट स्वामी नाथन लागू होगी। लेना पूछ आके किसान से, मिट जाएगा तू सारे हिंदुस्तान से। पीएम मोदी सुन पाते न सुन ले, पीएम मोदी तू कान खोल कर सुन ले, अपने हृदय में धर ले, बदल जाए तू किसान से, मिट जाएगा तू सारे हिंदुस्तान से। धन्यवाद। आपने मुझे सुना। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। मैं बालकराम तेवतिया, गांव जनौली, तहसील पलवल, जिला पलवल से हूं और पिछले 44 दिन से जो ये धरना चला हुआ है किसानों का, पूर्ण रूप से हमारा समर्थन है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं भारत सरकार से, यदि वास्तव में इस देश की इज्जत को बचाना चाहते हो, इसके मान सम्मान को बचाना चाहते हो, तो इस किसानों की इस मांगों को बहुत जल्दी पूरा करें, अन्यथा मोदी जी आप पछताओगे। इन किसानों से टकराओ मत। ये बहुत ही गंभीर हमारा विचार है, बहुत ही गंभीर आपसे निवेदन है। आप अपने अहंकार को त्याग दीजिए, राजहट को छोड़ दीजिए, अन्यथा आप हमेशा के लिए पछताओगे। ये हमारे किसानों की एक आवाज़ है, आप इसको दबा नहीं सकते। अपने वहम को निकाल दीजिए। ये वो गुजरात नहीं है जहां अपने दंगे फैला करके अपने आप को वहां बहुत बड़े लाइट में आए। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की भावनाओं को समझते हुए आप अपने इस विचार को छोड़ दीजिए और किसानों की मांगों को बहुत जल्दी मानिए। यही आपसे निवेदन है, अन्यथा आप पछताओगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇਜਰਾਮ ਵਿਦਰੋਹੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ सवाल कराएंगे, कुछ गलबात कराएंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर आप बताइए अपने विचार जो मोर्चे के बारे में, क्योंकि आप लगातार इस मोर्चे में हाजिरी भरते हैं। तो जो आपकी यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन होती है, एक चीज़ को हम कैच करते हैं, वो संगत के सामने ज़रूर रखिए। देखिए, अभी जो परिस्थितियाँ जो निर्मित हुई है, ये जो खासकर जो केंद्र की सरकार के द्वारा जो 3 काले कानून लाए गए, जिसमें जो सरकार द्वारा बार बार ये बात कही जा रही है, ये हमने किसानों को आज़ाद करने का कानून लाया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये हमारा है कि किसान कब गुलाम है? किसान तो अपनी उपज को कहीं पर भी बेचने के लिए स्वतंत्र है। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में एक वादा किया था कि जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो किसानों को C2 फार्मूले के आधार पर 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को उनकी उपज का दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। अब जब वो कानून लाया है, जो कानून ये है कि ये पूरा कारपोरेट घरानों के हित में है, खेती को, किसानों को ख़त्म करने का है, कि खेती में जो रोज़गार जो होता है उसको भी वो ख़त्म करने का एक कानून है। और सबसे बड़ी जो बात यह है कि हमारे अपने जो खाद्य की जो आत्मनिर्भरता है, खाद्यान्न पर हमारी जो पकड़ है, उसको ख़त्म करके वो कारपोरेटों के हाथ में देने का जो वो कानून है, जो सीधा सीधा ये बात है कि हमारी जो खाद्य सुरक्षा है उसको भी ख़त्म करने वाली बात है। इसलिए आज ये दिखाता है, आज का ये आंदोलन दिखाता है कि यह केवल किसानों का आंदोलन नहीं है, यह उन लोगों का भी आंदोलन है जो फुटपाथ पर सोने वाले जो लोग हैं, जिनके पास खेती नहीं है, जो कबाड़ी बीन कर रोजी मजदूरी करते हैं और अपना पेट चलाते हैं, उनके भी भोजन खत्म होने वाला है। यह भी दिखाता है जिन लोगों को नौकरी पेशे जो लोग हैं, उनको लगता था कि हम तो खेती नहीं करते, हम एक वेतन के ऊपर निर्भर हैं। तो ये जो कानून से
आज जो सस्ता जो उनको अनाज मिल रहा है, सस्ता में जो उनको भोजन मिल रहा है, वो भोजन की थाली उनका महंगी होने वाली है। इसलिए पूरे के पूरे जो वर्ग है इसको ये प्रभावित करने वाला कानून है। ये कि जो बहुतायत जो वर्ग है उनको आत्मनिर्भरता को खत्म करने वाला कानून है। तो भाई साहब जी, आगे 26 जनवरी भी आ रही है जी। तो उसके लेकर भी कई रणनीतियां किसानों ने अपनी जो बनाई हैं, उसके जो दौरा है ब्रिटेन के जो यहाँ पे पहुँच रहे थे सांसद, उनका भी रद्द हो गया है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं वो ज़रूर बताइए। देखिए, इन सारे जो बातों से नरेंद्र मोदी जी को भारत की जो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं उनको सबसे पहले समझना चाहिए। आपके सवाल बातों का सवाल का जवाब दूं इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो घटना अभी 2 दिन पहले अमेरिका में जो घटना घटी उसको लोग वो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना चाहिए। क्या भारत में आज जो किसान आंदोलनकारी जो किसान है, जो अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए, अपने आत्मनिर्भरता को बचाने के लिए आंदोलन करते हुए जो शहीद हो गए, क्या इसका जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी लेंगे कि मेरे हठ धर्मिता की वजह से ये किसान शहीद हो गए, किसान मौत के मुंह में चले गए? रही बात 26 जनवरी की, 26 जनवरी हमारा गणतंत्र है और गणतंत्र हमारा ये कहता है, हमारा जो संविधान ये कहता है कि सबको बराबरी का हक है। तो जब आप प्रधानमंत्री, हमने आपको चुना है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हो, तो हम जब चुन सकते हैं आपको, तो हम किसानों को आप हमारे परेड कराने से, किसानों को उनका ट्रैक्टर परेड कराने से कैसे रोक सकते हैं? ये हमारा एक सवाल है। इसलिए हमारा गणतंत्र दिवस है, हम उस गणतंत्र दिवस में हम भी स्वतंत्र हैं, हम अपने किसानों को अपने ट्रैक्टर का परेड करने के लिए, अपना कर्तव्य दिखाने के लिए हम स्वतंत्र हैं। देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं कि किसी भी गणतंत्र में हमारा संविधान ने हमको बाधा नहीं दिया है। वो हमको अधिकार है कि हम अपने भारत के संविधान के परेड में हम शामिल हो सके, तो इसलिए हम वहाँ जाएंगे। हमारे जवान हैं, वो हमारे घर के बच्चे, हमारे भाई हैं, हमारे घर किसानों के बेटे हैं, तो हम तो ये चाहते हैं कि वो जिस तरह से परेड में अब तक वो करते आए हैं, वो किसानों के परेड में वो शामिल हो। हम उनके परेड में नहीं, वो हमारे परेड में शामिल हो, किसानों के परेड में शामिल हो। अगर वो नहीं जाने देंगे तो ये नरेंद्र मोदी की हिटलर शाही होगी, ये लोकतंत्र नहीं होगा, वो नरेंद्र मोदी जी का हिटलर शाही होगा। वैसे तो जो पिछले जितने भी कानून मोदी सर लाए थे जी, वो सबको देखते हुए क्या ये जो कानून अभी थोप रहा है, ये थोपा गया है, वो महंगा पड़ रहा है? उनको लगता है कि जो पब्लिक है वो जाग पड़ी, लेकिन कहीं कहीं लगता है कि वो हिटलरबाजी अभी भी उनके मन में है। मन की बात बताते हैं कि सब मान जाएंगे, लेकिन इस बार नहीं मान रहे। तो लगता है कि आपको इस तरह रवाना होते आप वहाँ तक जाएंगे और आसानी से ये हमारी बात जो हम रख पाएंगे वहाँ पे? हाँ, देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को एक विश्वास था, क्योंकि देश भ्रष्टाचार, महंगाई, जिस तरह से आतंकवाद, इस सारी चीज़ों को देश देख रहा था, उसकी जो कीमतें चुका रही थी, उनकी बातों से लोगों को एक विश्वास हुआ था। अच्छे दिन का जो सपना उन्होंने जो सपना बेचा है उन्होंने, तो अच्छे दिन का सपना जब बेचा तो लोगों को लग रहा था, एक विश्वास होगा कि अच्छे दिन हमारे लिए आएंगे, तब उन्होंने उसके ऊपर विश्वास किया था। नोटबंदी जब हुई तो लगा कि यह नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन पुलवामा की घटना ने इस बात को, ये झूठ है, ये साबित कर दिया। ये नोटबंदी से आतंकवाद खत्म होने वाला नहीं है, नकली नोट खत्म होने वाला नहीं है। ये हमारा जो मजदूरों का, किसानों का जो आत्मनिर्भरता थी, उनकी जो कहीं छोटी मोटी जमा पूंजी थी, उसको खत्म करने वाला था। इसलिए लोगों का एक विश्वास उड़ चुकी है। ये नरेंद्र मोदी केवल एक जो बोलते हैं लोग फेंकू है, वो उन्होंने खुद ही साबित कर दिया है कि वो लोगों को जो बरगलाने में, झूठ बोलने में वो माहिर हैं। और जैसे कि हम लोगों ने हिटलर को बारे में भी जो पढ़ा, तो उनको भी अपनी मन की बात बोलने का बड़ा शौक था, वो अब किसी का सुनता नहीं था। तो ठीक उसी तरीके से हिटलर को की दिशा में, हिटलर को फॉलो करने वाला नरेंद्र मोदी है, और वो जनता की बात को सुनने के पक्ष में नहीं है। वो चाहता है कि जिस तरह हिटलर अपने मन की जो किया है वो करता रहे, लेकिन हिटलर अपने मन के करने के चक्कर में वो खुद ही खत्म हुए, ये भी अपने आप को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे सभी बॉर्डरों पे जो जनता इकट्ठी है, किसान आंदोलन में चल रहे हैं, लेकिन क्या देखने में मिल रहा है कि तोमर सर या मोदी सर अभी भी ये कह रहे हैं, अभी प्रचार हो रहा है कि इनको अभी समझ नहीं आ रहा
आ रहा, अभी मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, इनके हक में है, अभी भी प्रचार यही किया जा रहा है, क्या लगता है कि इसका बात उनको समझना चाहिए। हमको समझ पूरी आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने अब तक हमें मार रहा था, हम उनको कुटाई कर रहे थे, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, भ्रष्टाचार की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, इस तरह से वो अभी हम लोग को छल रहे थे। वो अब उनको लग रहा है कि इस छल से हम बाहर आ चुके हैं, अब हम समझ चुके हैं ये छलावा हमारे लिए कब्रगाह साबित होगा, तो हम इस कब्रगाह में अब जाने वाले नहीं हैं। तो अभी भी इनको ये लगता है कि हम किसानों को छल लेंगे, अपने फेरे में ले लेंगे, तो ये वो गलत फहमी में है। मेरे को तो लग रहा है कि पीएम सर अभी भी जो भाषण दिया जाएगा उसमें भी यही बोलेंगे कि जो हमने किया किसानों के हित में किया है, जितना भी कानून लाए हित में लाएंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है मन की बात कहने का। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो हम तो ये कहते हैं वो 26 जनवरी बहुत दूर है अभी, अब वो यहीं आ जाए, ये पलवल के बॉर्डर में जहाँ पर जो धरना हो रही है, या सिंधु बॉर्डर में, या गाजीपुर बॉर्डर में, किसी एक बॉर्डर में चले जाए, उनसे ज़्यादा दूर नहीं है। ये जब रायसेन में मध्य प्रदेश को संबोधित कर सकते हैं, गुजरात में जाके संबोधित करते हैं, तो दिल्ली के अंदर अब तो ऐसा है कि केवल हरियाणा और पंजाब के किसान नहीं है, यहाँ में तो अलग अलग प्रांत के किसान आ चुके हैं। अब अलग अलग प्रांत में, अलग अलग राज्यों में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ अलग अलग राज्य के किसान यहीं पर बैठे हुए हैं, यहीं आकर तो बात करें। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹ ਦੇ ਗੱਫੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੂਲੀਆਂ ਛਿੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਮਟਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਆਜ਼ ਚੀਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਦਰਕ ਚੀਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੜਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣੇ ਆ ਉਹ ਪੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਕੜਾਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਦੇਗੇ ਉਹ ਧਰੇ ਹੋਏ ਆ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹ ਲੰਗਰ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਵੇ। ਕੈਂਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ ਫ੍ਰੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਕੁ ਦਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੋਈ 28 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜੀ। ਨਾ ਆਪਣੇ 4-5 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜੀ, 4 ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਛਕਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਬਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਈ ਜਾਈਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ
ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਏ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਬੈਡਰੂਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਬਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੰਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਰੇਲ, ਮੀਂਹ ਕਣੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਤੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਸੀ ਜੁਗਾੜ ਕਰਕੇ ਤੰਬੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते अंकल जी, आप अभी लगा रहे हो ये टेंट, तो कितने दिन से आप यहाँ पे मोर्चे पे हाजिरी भर रहे हो? हम लोग तो 26 से ही हैं। 27 को धरना शुरू हुआ, 24 से हम लगातार बने हुए हैं। हमारे साथी हैं सब, पूरा आगरा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब पूरे साथी यहाँ साथ आए। तो यहाँ पे रात को रहने की या किसी तरह की कोई परेशानी तो परेशानी जो है झेलेंगे ही, किसान है। परेशानियों में तो जिसका जीवन ही परेशानी में है वो तो नहीं तो जैसे मौत के उसमें चला जाएगा। ये परेशानी तब भी कम है उस परेशानी से, नहीं आने वाली नस्लें ही चली जाएंगी, मोदी उन्हें ही खत्म कर देगा। बिल्कुल। सो ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? जी वो क्या तारीख को 16 को 15 को जो भी फैसला होगा वो केंद्र सरकार उस फैसले को टालने की कोशिश कर रही है कि किसानों, लेकिन हम लोगों ने भी यही प्रण किया है कि हम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाएंगे, चाहे हमें कानून वापस नहीं तो हमारी भी घर वापसी नहीं। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸ ਕੇ ਹੰਡਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਲਵਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਡੁਡੇਜਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਦਿਲਚਸਪ ਜੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣਗੀਆਂ। सबसे पहले तो मैं वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी फतेह कहना चाहना। अपने सरदार सुखबीर सिंह जी जो गलियार इतने आके रुके हुए हैं कई दिनों तो, उन्होंने दसिया है कि अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर उन्होंने गवांढी सी, वो गवांढी होने के बावजूद भी अपनी राजनीति कारण अपनी उन्होंने कब्जे च आ रहे हैं। वो एक बार विज्ञान भवन की मीटिंग हुई सी, वो कह रहे सी कि अगर असी पब्लिक की या किसानों की गल्लां मान लईए तो सानू अंबानी अडानी नहीं रहने देंगे। मैं तो ये तक कह सकता हाँ कि उन्होंने पहले ही इस्तीफा लेकर रख रखे मोदी का। जिस दिन ये एक्सेप्ट करेंगे किसानों की 3 मांगा उस दिन उन्होंने रिजाइन दे के पब्लिक आ जाएगा। इस तरह लग रहा है कि दे आर नाउ बीइंग entrapped by Ambani Adani families and they are being monitored and taken away by Ambani Adani. So it's a very dangerous thing for the democracy. जिस तरह तुसी देखा होने कल परसों अमेरिका होया है, ट्रंप हारने के बावजूद भी वो छोड़ के राजी नहीं, उन्होंने तो इंपीचमेंट करना हो जा सकता है। इस तरह मोदी के खिलाफ भी कुछ ना कुछ हो सकता है। जिस तरह वो देश के किसानों के नाल गलती नाल पेश आ रहे हैं, उन्होंने मांगा नूं पसंद नहीं कर रहे, उन्होंने समझ नहीं रहे कि किसान ये रीढ़ की हड्डी है, अगर किसान ये नूं नहीं मिलेगा कुछ तो किस तरह रहेंगे। तो इस वास्ते मोदी साहब नूं भी थोड़ा अमरीका तो ट्रंप तो सबक लेना चाहिए है। जब तुसी पॉपुलर नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं, जबरदस्ती क्यों तुसी अपना कब्जा करना चाहते हो, इस तरह नहीं करना चाहिए और जनहित को ना कुछ करना चाहिए। 26 जनवरी आ रही है, हाँ जी, बंदी होगी किसानों की 26 जनवरी, क्योंकि 26 जनवरी पीएम सर का जो भाषण सारे वर्ल्ड ने सारी अपने इंडिया के ਜਿਹੜੇ पब्लिक सुनती है। इस बार किदां दे उत्थे माहौल रहूगा, किसान की करन जा रहे हैं?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਨਾਡਾ ਯੂਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਾਡਾ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿਣਗੇ ਇਤਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਪਈ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ रिपब्लिक डे परेड करेंगे। इससे मुझे लगता है कि बड़ा डेंजरस चीज़ है, पूरी दुनिया उन्होंने समझ रहे हैं, कनाडा ओपनली आ रहे हैं, यूके भी इनडायरेक्ट इनकी सपोर्ट कर रही है कि सत्य उन्हें अपनी कैंसिल करती है वो यात्रा। मैं दोनों को कहना चाहता जी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने थोड़ा अपने सद्बुद्धि ना कम करें और अंबानी अडानी थोड़ा उन्होंने बच के रहें, नहीं तो देश की हालत बड़ी खराब हो जाएगी। अगर किसान ही उन्हें अगेंस्ट हो गया तो आने वाले समय उन्हों की पार्टी को बड़ा नुकसान होएगा। जिस तरह कांग्रेस आज भुगत रही है उससे बीजेपी का यो हौल जाए कि अगे 20-25 साल तक इन्होंने मौका ही ना मिले, हूँ इन्होंने मौका मिले तो सेवा करनी चाहिए सबनों। जब सबका विकास सबका साथ सबका विश्वास लेके चलना है तो इस तरह होएगा, नहीं तो ये होएगा।